सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ गाइडेंस गुरु NK ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PPSC ਰਾਹੀਂ ਜੋ 200 ਪੋਸਟਾਂ ADO ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, PPSC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 200 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ 33% ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਜਿਸ ਦਾ 71 ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜੋ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 78 ਜੋ ਪੋਸਟ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨ ਹਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੂਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 20 ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੋ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹਨ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਔਰ 1 ਪੋਸਟ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ 77 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੋਟਲ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ SC ਔਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ 78 ਔਰ 79 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ SC ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 1 ਪੋਸਟ ਔਰ 0 ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਗਈ ਦੋਸਤੋ 81 ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਹਨ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ 1 ਕੀ ਹੈ ਕਿ the number of posts may be increased or decreased by the government any time। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜੋ 33% ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਰਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੂ ਅਪਲਾਈ ਅੰਡਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ GSR 40 ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3A ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਵੂਮਨ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਜੋਨਲ ਲੀਗ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਫਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨशिप ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰਡ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ 40% ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है दोस्तों, और अगर असी इनिशियल पे की गल करिए तो इनिशियल पे दे विच देखो स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो मुढ़ली पे है वह 44,900 रुपये ही दी जानी है। और अगर तुम इसनूं डिटेल दे विच पढ़ोगे तो सानू पता लगेगा कि जो ये कैंडीडेट जो सिलेक्ट होणगे 3 साल के लिए प्रोविजन पीरियड के उत्ते ये रखे जाने हैं। और अगर आप गल करते हैं जी इसकी क्वालिफिकेशन की, तो की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एडीओ लगन दे लई, तां उहदे आपां गल करांगे कि मिनीमम जो इसकी क्वालिफिकेशन है वह BSc एग्रीकल्चर इन्होंने रखी है विद 60% मार्क्स। और अगर होर इसकी गल करिए नाल इन्होंने होर की सानू कहा है कि मैट्रिक तक जो है पंजाबी है वो लाजमी तौर पर पढ़ी होनी जरूरी है। और एक दोस्तों ये खास सानू कल ध्यान देने की गल जो इंपोर्टेंट नोट इन्होंने दिता है कि जो भी कैंडीडेट इस दे लई अपलाई करता है और जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो 29/12/2022 तक पूरी हुई होनी जरूरी है। ये ना होवे कि जो व्यक्ति ने क्वालिफिकेशन जो कर रहा है वो 29/12/2022 तक भी पूरी नहीं हो रही। और अगर असी इसकी गल करिए एज की कि किहड़ा व्यक्ति इन्हां पोस्टां दे अपलाई कर सकता है, तो इस दे लई जो एज चाहिए है वह 18 साल तो लैके 37 साल तक की जो एज है वो रिक्वायर्ड की गई है। और जो ये एज है ये भी 1/1/2022 नूं मतलब स्टैंडर्ड मानक मन के मन्नी जाएगी, भाव कि 1/1/22 तक जो उम्र है वो 18 साल तो लैके 37 साल तक दे विच होनी चाहिए है। और ये कुछ जो छूटां भी दित्तियां गईयां हन तां वो भी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा कि जो पंजाब गौरमेंट के इंपलाई हैं तो उन्होंने एज दे विच 45 साल तक की रिलैक्सेशन दी गई है, भाव कि अगर कोई पंजाब गौरमेंट का इंपलाई है या कोई पंजाब के अधीन किसी बोर्ड का कारपोरेशन का कमीशन का इंपलाई है या स्टेट का या सेंट्रल का इंपलाई है, तो अगर उसकी उम्र 45 साल तक की भी है तो भी वह इन्हां पोस्टां दे लई अपलाई कर सकता है। और अगर असी SC या BC कैटेगरीज की गल करिए तो उन्होंने दे लई 42 साल तक उम्र की छूट दी गई है, भाव कि जेकर वो 42 साल तक की उम्र तक भी हैं तो भी वह इन्हां पोस्टां दे लई अपलाई कर सकते हैं। और इस तरह दोस्तों अगर असी गल करिए विडोज की या डिवोर्सिस की तो उन्होंने दे लई भी जो एक विशेष छूट दी गई है, उन्होंने दे लई भी जो एज है वो 42 साल तक की उन्होंने छूट दी गई है। और एक असी गल की दोस्तों परसन विद डिसेबिलिटी की, वो लोग जिन्हों के विच मिनीमम 40% जिहड़ा डिसेबिलिटी पाई जाती है और उन्होंने कोल सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उन्होंने लिए भी एज दे विच छूट दी गई है। तो इहो जे व्यक्ति जो है 47 ईयर्स तक अगर उन्होंने एज है तो वह इन्हां पोस्टां दे लई जो अपलाई है वो कर सकते हैं। तो नैक्सट दोस्तों असीं गल करन जा रहे हैं कि की पैटर्न होवेगा, की स्कीम होवेगी, किस तरह का जो एग्जाम आएगा, असीं उसकी गल करन जा रहे हैं। तो देखो ये बहुत ही क्लीयर कट लिखा गया है कि टोटल जो है रिटन जो कंपीटिटिव एग्जाम होएगा उस टोटल 120 क्वेश्चन आउणगे, 120 क्वेश्चन आउणगे। और हरेक क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का होएगा और टोटल है जो 480 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होएगा। और अगर असीं इंटरव्यू की गल करिए तो इंटरव्यू भी इस रखी गई है। टोटल जो इंटरव्यू है उसके 60 मार्क्स हैं, तो इस तरह 480 और 60 जो कुल मार्क्स बनते हैं वो 540 मार्क्स का जो थोड़ा एग्जाम है वो कुल आना है। तो अगर इस असीं वाइफिकेट करके देखिए, इसनूं असीं डिटेल दे विच देखते हैं तो देखो तुहाडे सामने है कि जो ये क्वेश्चन सानूं आने हैं ये MCQ टाइप आने हैं। एक गल तो सानूं ये गल बिल्कुल क्लीयर होगी कि MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। और अगर क्वेश्चन की वंड देखिए तो ये असीं देख सकते हैं कि जो 100 क्वेश्चन हैं सानूं वो पार्ट ए दे विचों आएंगे। जो क्वेश्चन फ्रॉम द सबजैक्ट पार्ट ए ऑफ सिलेबस सानूं दस्सिया गया है कि जो सिलेबस दे विचों आएंगे ये क्वेश्चन 100
और 4 नंबर का हरेक क्वेश्चन आएगा। जिस तरह कि आप पहला गल कर चुके हाँ, तो टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब सबजैक्ट के विचों आने हैं। और अगर बाकी 20 क्वेश्चन की गल करिए तो उन्होंने भी इन्होंने दसिया कि जनरल नॉलेज के विचों, करंट अफेयर्स के विचों, लॉजिकल रीजनिंग, मैंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उस तरह 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होएगा, तो टोटल 80 मार्क्स है जो इसके बनते हैं। तो इस तरह 480 मार्क्स का जो है ये रिटन एग्जाम होएगा, जिस दे विच 120 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे की होंगे MCQ टाइप होंगे, भाव के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है सानू ये होंगे। और हुण इहदे विच जो मेन जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने वो किहड़े-किहड़े ने, पहली गल तो यह कि जो सारा का सारा पेपर आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज दे विच आएगा, होर कोई लैंग्वेज नहीं होएगी। और दूसरी जो कि आप पहला गल कर चुके हाँ कि हरेक क्वेश्चन जो हो 40 मार्क्स का होएगा, सॉरी 4 मार्क्स का होएगा। और एक गल जो सब तो इंपोर्टेंट है वो यही है कि इस दे विच नैगेटिव मार्किंग होएगी, भाव कि अगर तुसी किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिंदे हो तो उस क्वेश्चन के लिए तुहाडा 1 नंबर है जो वो कट्टिया जाएगा। ठीक है जी। सो मतलब यही है कि हरेक कैंडीडेट को पूरे ध्यान देना जो पेपर है उसनों सॉल्व करना होएगा, क्योंकि हरेक गलत आंसर के लिए तुहाडा की है 1 मार्क्स कट्टिया जाएगा। और इस दे विच सानू थोड़ी छूट यही है कि अगर सानू कोई क्वेश्चन नहीं आता असी उसनों अनअटैम्प्टेड छड्ड दिंदे आ, भाव कि असी उसनों हल नहीं करते, तो उसका साडा कोई भी किसी तरह की कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं होएगी। तो नैक्सट दोस्तों गल करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की। तो अगर असी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की गल करिए तो टोटल जो सानू है वो 2 घंटे का समय जो इस पेपर नूं हल करने के लिए दिता जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट है जी साडा सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, कि की कुछ सिलेबस होएगा, किस दे विचों सानू जिहड़ा पेपर आना हैगा। तो इहदे विच देखो स्पष्ट लिखा गया हैगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस एंड फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अनैक्सर 7 दे विच जो डिटेल दे विच जो है सिलेबस सानू वो दस्सिया गया हैगा। नैक्सट दोस्तों गल करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, कि तुहाडा जो पेपर है किस तरह होएगा। तो देखो बिल्कुल क्लीयर लिखा गया हैगा, द एग्जामिनेशन इज ए पेन एंड पेपर बेस्ड टू बी आंसर्ड ऑन द स्पेशली डिजाइन मशीन ग्रेडेबल OMR शीट यूजिंग बॉल पॉइंट पेन, कि बिल्कुल पेन और पेपर देना तुहानू यह पेपर जो है एग्जाम है जो देना पएगा, और OMR शीट के उत्ते जो तुसी अपने रिस्पॉन्स है जो जवाब है उसनों तुसी फिल करना होएगा। और नैक्सट दस्सिया गया कि इनफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर, किस तरह कैंडीडेट को पता लगेगा कि उसका किहड़ा एग्जाम सेंटर है जो बनेगा। तो ये स्पष्ट लिखा गया कि जो तुहानू एडमिट कार्ड्स जारी होणगे तो उन्हां एडमिट कार्ड्स के उत्ते जो तुहाडा सेंटर है उसनू भी मैंशन कर दिता जाएगा कि तुहाडा किहड़ा सेंटर है, किहड़े जिले दे विच और किहड़े इंस्टीट्यूट दे विच जो तुहाडा सेंटर है एग्जाम सेंटर वो बनाया गया, बिल्कुल क्लीयर कट उत्थे तुहानू मैंशन कर दिता जाएगा। नैक्सट दोस्तों गल करते हाँ एलिजिबिलिटी एंड स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड टेस्टिमोनीयल। तो ये एक गल बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है PPSC के वलों कि जो तुहाडा जो मतलब एलिजिबिलिटी है बिल्कुल प्रोविजनल होएगी, क्योंकि एक बार की है उन्होंने तुहाडे फॉर्म्स एक्सैप्ट कर लेने है, तुहानू रोल नंबर जारी कर देने हैं, और अगर तुसी रिटन एग्जाम क्लीयर करते हो तो उस तो बाद ही जो स्क्रूनिटी प्रोसैस है वो शुरू की जाएगी, और वो जो स्क्रूनिटी प्रोसैस है वो भी इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू तो बाद ही होएगी। और ये इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अगर तुहाडा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो मतलब फाल्स पाया जाता है, फेक पाया जाता है, या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स नूं पूरा नहीं करता, तो जो तुहाडा कैंडिडेचर है मतलब तुहाडी जो पात्रता है उसनूं रद्द कर दिता जाएगा। नैक्सट दोस्तों आप गल करते हैं इंटरव्यू की। तो जिस तरह आप पहला भी कर चुके हाँ कि 60 मार्क्स की जो तुहाडी है वो इंटरव्यू होनी है। तो इंटरव्यू के लिए कितना कैंडीडेट्स को कॉल किया जाएगा, तो ये इन्होंने स्पष्ट दस्सिया कि अगर तुसी मिनिमम 40% जो मार्क्स है वो लए ने रिटन टैसट के विचों, तो तुहानू मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। तो तुहाडी एलिजिबिलिटी इंटरव्यू के लिए हैगी है मिनिमम 40% मार्क्स तुसी अचीव किए होण, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर तुसी 40% मार्क्स लै ले तो तुहानू इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। तो ये तुहानू यही दसना बनता है कि तुहानू इंटरव्यू के लिए तां ही बुलाया जाएगा अगर तुसी
200 टाइम्स जिन्नियां पोस्ट हैं, अगर मान लो आप मानते हैं कि 200 पोस्ट हैं तो सिर्फ ते सिर्फ 400 जो कैंਡੀਡੇਟਸ ने उन्होंने ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो नैक्सट दोस्तों आप गल करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो अगर फाइनल रिजल्ट की गल की जाए तो बिल्कुल ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के उत्ते बेस्ड ही होएगा। दोनों के मार्क्स नूं एग्रीगेट करके ही जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। नैक्सट है जी नैशनैलिटी की। तो नैशनैलिटी के उन्होंने सानूं दस्सिया है कि जो भी कैंਡੀਡੇਟ अपलाई करना चाहता है सिटीजन ऑफ इंडिया होवे, सिटीजन नेपाल होवे, सबजैक्ट ऑफ भूटान होवे, तो अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने सानूं दसियां हन। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की गल करिए, किस तरह तुसीं कदों तक जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, तो ये इन्होंने बिल्कुल क्लीयर कर दिता है सानूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो आखिरी तारीख है वो है 29 दिसंबर 2022 रात के 11:59 तक। और कदों तक असी एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं या एग्जामिनेशन फीस भर सकते हैं, तो वो लिए सानूं जो डेट्स दी हैं वो है 9 दिसंबर 2022 तो शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 तक रात के 11:59 तक का जो सानूं है समा जो है दिता गया है। तो कई बार साडे कुछ कैंਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि अप्लाई करन तो बाद असी उस फॉर्म नूं की करना है, तो इन्होंने बिल्कुल क्लीयर कर दिता है द कैंਡੀਡੇਟਸ आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। भावे कि तुसी अप्लाई करन तो बाद फॉर्म नूं किते भी नहीं भेजना है, तुसी उस फॉर्म की कापी सिर्फ तो सिर्फ अपने कोल ही रखनी है, क्योंकि उसकी तुहानूं उदों जरूरत पैनी है जदों तुहाडा टेस्ट क्लीयर हो जाना है। तो इंटरव्यू के दौरान तुहाडे तो जो कापी है वो मंगाई जाएगी और उस कापी के नाल तुहाडे तो जो होर सर्टिफिकेट मंगाए जाएंगे वो पॉइंट 8.6 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन किया गया है, जिस तरह के प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया, तुहाडे कोल 10वीं जो पंजाबी नाल तुसीं पास की है उसका सबूत हो गया, जिन्नियां भी रैलेवेंट डिग्री हैं DMC सर्टिफिकेट हैं वो तुहाडे तो मंगाए जाएंगे। अगर तुसीं स्पोर्ट्स कैटेगरी के अधीन अपलाई किया तो स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो तुहाडे तो मंगाया जाएगा। अगर तुसीं किसी डिसेबिलिटी कैटेगरी के अधीन अपलाई किया है तो उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट तुहाडे तो मंगाया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के अधीन अगर तुसीं अपलाई किया तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट तुहाडे तो मंगाया जाएगा। और लेटेस्ट पंजाबी रेजिडेंस सर्टिफिकेट मतलब कि डोमिसाइल है जो ये भी रिक्वायर्ड किया गया है, यह भी तुहाडे तो मंगाया जाएगा। और ये जो सब तो इंपोर्टेंट है कि जो ये सारे सर्टिफिकेट होंगे ये सैल्फ अटैस्टेड सर्टिफिकेट्स होंगे, भाव कि तुहाडे वल्लों ही टैस्ट किए गए होंगे। और इस तरह दोस्तों ये आपां होर अगे गल करते हैं, होर ये तुहाडे तो की मंगाया जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तुहाडा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किस कंपीटेंट अथॉरिटी तो तुसी जारी किया गया है तो वह भी तुहाडे तो मंगाया जाएगा। इस तरह अगर तुसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अधीन अपलाई किया तो उस तरह जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो तुहाडे तो मंगाए जाएंगे। अगर तुसी किसी किस्म का एज रिलैक्सेशन लई है तो तुहाडे तो वो सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा। मीनस कि तुसी जिस भी कैटेगरी के लिए या जिस भी फैसिलिटी के लिए अपलाई किया है तो उस तरह संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है तुहाडे तो मंगाए जाएंगे। नैक्सट दोस्तों असीं गल करते हैं एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस की। किन्नी फीस होएगी बिल्कुल क्लीयर कट लिखा गया है। जो फर्स्ट इन्होंने कैटेगरी बनाई है एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन की, परसन विद डिसेबिलिटीज़ की, तो इन्हां दे लई जो फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है जो 500 है और एग्जामिनेशन फीस इन्हां दे लई कोई नहीं है। तो टोटल जो फीस बनती है इन्हां दी 500 रुपीज़ ही बनती है। नैक्सट जो साडी कैटेगरी आती है शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासिस, तो ये जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 है और एग्जामिनेशन फीस है वो 250 भाव के 250 रुपया रखा गया है। तो टोटल जो फीस बनती है वो 750 रुपये बनती है। बाकी होर जिन्नियां भी कैटेगरीज रह गई इनकलूडिड जनरल कैटेगरी तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज़ है और जो एग्जामिनेशन फीस है उसनों 1000 रुपये रखा गया है। भाव के जो टोटल फीस बनती है वो 1500 रुपये बनती है। तो इस तरह तुसी दोस्तों जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तो बाद अपनी फीस भरन तो बाद सबमिट का बटन दबा देना है और इस तरह तुसी इन्हां पोस्टां दे लई एलिजिबल बन जाओगे। सो दोस्तों अज तो ही तैयारी शुरू करो।
सो साडे वालों तुहानू बहुत बहुत शुभकामनावां, बेस्ट ऑफ लक। और अगर तुसीं इस तरह ਦੀਆਂ होर भी वीडियोज़ देखने चाहुंदे हो ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुहानू अलग-अलग नौकरियां ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ जो गाइडेंस गुरु NK ਦਾ जो ऑफिशियल चैनल है उसनू लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू।